what are the problems which are existing in livestock sector. तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे पास, जिसमें कि एक जेंडर इश्यूज है, ठीक है। इसके बाद देर इज lots of issues like caste issues is there, religion issues is there. Okay, so there is a huge gap of socio-economic status among the farmers. So there are different culture and there are different issues. So I have told you about the aim of extension. There are three aims. Number one aim is to increase the production. Second aim is to human resource development, to develop the human resources, and number three is cultural change. So this particular issue, which is related to gender issues, there are other issues like child labor. Okay, there are so many issues in the rural society. So today we will discuss about the gender issues. One of the main contemporary issue in livestock sector is the gender issues. Our half of the population is female, okay, and they are contributing a lot in the animal husbandry sector as well as in the agriculture sector, and yet they are not given credit of uh, doing their agricultural activity or animal husbandry activity. So this is what our uh, women are playing a vital role in animal husbandry. Means they are milking the animals, they are cleaning the animals, they are feeding the animals. Okay, and especially small animals like sheep, goat, poultry, they are maintaining all the managemental practices of the animals. तो हमारा जो मेन मोर देन 50% पॉपुलेशन या अबाउट 50% जो हमारा फीमेल पॉपुलेशन जो है, वो लोग हमारा एग्रीकल्चर में चाहे एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड क्रेडिट. ओके, क्रेडिट इज गिवन टू जनरली मेल पार्टनर्स and they are not even receiving the benefit which is resulting out of the animal husbandry sector. तो हमारा ये gender issues is the one of the greatest issues, contemporary issue means at present, है ना. Maybe in the future time gender mainstreaming will be not a issue, but at present there is a issue. Next slide करो, अगला slide. स्लाइड चेंज करो. हाँ, जैसा कि हमने बताया था, both male as well as female both are playing vital role in agriculture, and about 60 to 80% of the food in most developing countries is produced in the rural areas. Yet despite their contribution to global food security, women farmers are frequently underestimated and overlooked in the development strategies. जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है तो उस समय हम लोग कभी भी कहीं भी वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता है ना. जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया का जब प्लानिंग हो रहा होता है कि कैसे कैसे मान लो कोई अथी है, क्या बोलते हैं, कोई प्लान है, कोई इसको इम्प्लीमेंट कराना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें जो है जनरली वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है. ठीक है.
हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। सर है कहाँ के सर की आवाज आएगी? ओहो। ये बिना भाई तुम मत बोलो। हमको खांसी हो गया। सबको बराबर अधिकार है बोलने का। निर्मल बोलो। हाँ चलो ठीक है। निर्मल इतना बोलो कि सब तबाह हो जाए। अरे सर आ हाँ, गए यार। डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है कुछ है। यस ठीक है। सर, बीच में आवाज नहीं हाँ आती। हाँ हाँ एम आई ऑडिबल टू यू? सुन रहे यस हो ना सर। सब? यस सर। चलो यस सर। ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनती है हमारे कंट्री में, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ भी ये जो जेंडर इश्यूज एक हो जाता है कि मेल को प्राथमिकता दिया जाता है ना। वहाँ पर जो टेक्निकल पर्सन है उसके साथ साथ फार्मर्स का भी इनकॉर्पोरेशन किया जाता है प्लानिंग में, लेकिन वहाँ भी जनरली मेल पार्टनर जो है उनको ही मतलब प्लानिंग में रखते हैं। तो भाई जब हमारा मोर देन 50% एनिमल हस्बेंड्री का वर्क जो है वो जब फीमेल पार्टनर करती है, ठीक है, फीडिंग और मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जो होता है वो फीमेल वोमेन ही जो है गांव में करती है। तो जब तक उनको हम लोग प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, है ना, स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो कैसे हमारा जो बात करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को, वो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो धरातल पर कैसे उतरेगा, है ना। तो हमको जरूरत है कि वुमेन एम्पावरिंग का, ठीक है, उनको जो हक देना है उसकी जरूरत है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। ये कोई टफ चीज नहीं है, ये तुम लोग खुद से अपना दिमाग से भी जो है लिख सकते हो, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी समझने वाली चीज नहीं है। चलो ये सब तो है, एग्रीकल्चरल जो है व्हीट मेज ये सब प्रोड्यूस किया जाता है। वोमेन जो है वो एग्रीकल्चर में भी भाग लेती है और एनिमल हस्बेंड्री में भी भाग लेती है, ठीक है। Also, once the harvest in the rural women provide most of the labor for post harvest activity। तो लोग देखे होंगे गांव में जो है धान वगैरह कट के, जब गेहूं वगैरह कट के जब आता है तो उसका जो है मतलब कटनी से लेकर के, हार्वेस्टिंग मीन्स कटनी हो गया, वहां से लेकर के फिर उसका जो कुट्टी बनाया जाता है या फिर जो धान और गेहूं को जो सेपरेट किया जाता है उसके प्लांट से, वो सारा प्रोसेस जो है वुमेन करती है। देखे हो ना खेत में वुमेन को ही ज्यादातर देखो काम करते हुए, हालांकि मेल भी होते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इज ए प्रोसेस रेदर देन ए गोल। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है मेन स्ट्रीमिंग किया जाता है। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम लाइन में लाना, ठीक है। जो हमारा एग्रीकल्चर, जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रीम लाइन है उसको लाना, उसमें वुमेन को लाना, ठीक है। ठीक है, काम तो कर रही है सारा चीज, वुमेन जो है हस्बेंड्री एग्रीकल्चर में काम कर रही है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट होता है उसमें उसको हिस्सा नहीं दिया जाता है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में या फिर घर से बाहर का जो काम है कहीं, चंदन माइक ऑफ कर लो तो। हाँ, जो लोग भी अगर घर से बाहर है जहाँ पे डिस्टरबेंस है साउंड का, माइक बंद कर लो, अपना म्यूट कर लो। तो उसमें क्या है कि हमें
क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फीमेल पार्टनर है उसको स्ट्रीम लाइन में लाना पड़ेगा। स्ट्रीम लाइन में समझते हो ना, यानी जो हमारा सोशल का जो सोसाइटी का जो हमारा स्ट्रीम मुख्य लाइन चल धारा। रहा है, मुख्य धारा, हिंदी में बोला जाता है मुख्य धारा में जोड़ना, है ना, समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। तो वो चल रहा है, सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे चल रहे हैं। पहले देखो आजादी के पहले बहुत ज्यादा समस्या थी, खासकर ये सेक्सुअल बायसेस जो होता है या सेक्स मतलब क्या उसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन पहले काफी ज्यादा था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे लोगों ने इफोर्ट्स किया था कि ये जो सेक्सुअल बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको चेंज किया जाए, उसको बंद किया जाए। पहले था ना सती प्रथा था, फिर बाल विवाह था, डोरी सिस्टम, अभी भी कुछ है बचा हुआ। तो उस समय बहुत सारे लोग थे, जैसे कि विनोबा भावे हो गए, फिर तुम्हारा वो सावित्री बाई फुले, है ना, राजा राम मोहन राय, फिर बहुत सारे समाज सुधारक लोग थे। उसके बाद जब हमारा देश डिपेंडेंट हुआ तो संविधान बना, तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है उसमें रूल रेगुलेशन बनाए। तो उसमें जो किया गया कि भाई देयर शुड बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, ओके, बेस्ड ऑन जेंडर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। पहले क्या होता था कि फीमेल को जो है, जैसे मान लो अगर फीमेल लेबरर है, ठीक है, मेल लेबरर है, तो मेल को जो है डबल पैसा दिया जाता था, फीमेल को हाफ दिया जाता था, यानी जो लेबर का अभी भी चार्ज वही जो होता है। हाँ, अभी भी कहीं कहीं है। तो ये चीज था, पहले 12 घंटे का काम कराया जाता था लेबर से। तो जब संविधान बनाया गया तो उसमें प्रोविजन डाला गया कि नहीं, 12 घंटे नहीं, काम सिर्फ 8 घंटे लेना है, चाहे लेबर का हो, चाहे मतलब पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी अगर कोई जॉब कर रहा है तो 8 घंटे ही जॉब होना चाहिए, 12 घंटे नहीं। तो ये सारा जो है सोशल रिफॉर्म्स सब किया गया, बहुत सारा बाद में लाया गया। नेक्स्ट स्लाइड करो। अब वुमेन धीरे धीरे, हाँ, नेक्स्ट है जेंडर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेक्स्ट लेक्चर हमारा है। चलो स्लाइड आगे बढ़ाओ। इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने का चीज नहीं है, तुम लोग स्लाइड खुद से पढ़ोगे ना तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। सिंपल सा बात है यहाँ पे कि जेंडर बायसनेस जो है ना वो हमको रिड्यूस करना है, ताकि जो फीमेल पार्टनर जो है, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री में वाइटल रोल प्ले कर रही है, उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाएं, मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, तो इसमें वही सारी बातें लिखी हुई है जो पहले हम लोग बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरह से वुमेन अपना कंट्रीब्यूशन करती है, एनिमल हस्बेंड्री में किस तरह से वुमेन अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करो। हाँ, इसमें एक चीज तुम लोग और देखे होंगे कि गांव में जो है, जो जैसे पशुपालन किया जाता है, उसमें देखे होंगे कि एक तो ठीक है, फीमेल जो घर में लेडीज जो होती है वो फीडिंग करना है, एनिमल को नहलाना है, ठीक है, और बाकी दूसरे मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जो हैं वो जैसे काऊ डंग वगैरह साफ करना, पशु को जो है अच्छा से रखना, ये सारा काम करती है। घर में तुम लोग ये भी वहाँ देखे होगे ये भी कि जो बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 8 साल 10 साल के बच्चे हैं जिनको अभी स्कूल जाने का मतलब एज हो गया, उसमें भी देखोगे बच्चों को भी लगा दिया जाता है वो एग्रीकल्चर का काम में, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का काम में। अब बच्चों में भी एक चीज और देखे होगे कि जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स को जो है ज्यादा कामों, इस सब कामों में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे एक और चीज की मतलब एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि फीमेल किड्स का एजुकेशन का, है ना, गाँव में देखे होगे कि ज्यादा फोकस जो है दिया जाता है कि जो बॉयज है उसको एजुकेट करने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, और जो गर्ल्स जो होती हैं
उनके एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। उनको जो है वो खेत का काम में लगा दिया गया, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के काम में लगा दिया गया। तो इस तरह से उनका जो है एक तो पढ़ने का जो जरूरत है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, वहां भी जो है एक तरह से बायसनेस होता है। तो जेंडर कंसेप्ट क्या है? सेक्स तुम लोग जानते हो, मेल फीमेल दो तरह का सेक्स होते हैं। जेंडर बायस किसको कहा जाता है? द टेंडेंसी टू मेक डिसीजन और टेक एक्शन बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर के बेसिस पर अगर कोई एक्शन लिया जाता है, यहाँ ये लड़का है इसलिए इसको ये सारे काम करने की इजाजत है, ये लड़की है इसलिए ये काम नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, ये पढ़ाई का काम स्कूल नहीं जा सकती, अगर ऐसा अगर किया जा रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज ए जेंडर बायसनेस। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का क्या मतलब हुआ कि हम लोग को मुख्य धारा में लाना है, यहाँ पे जेंडर बायसनेस है उसको दूर करें, और वी शुड bring forward the women into the mainstream of our society. ठीक है, gender mainstreaming is the process of forcing that women and men have equal access and control over resources. रिसोर्सेज पे सबका समान अधिकार होना चाहिए, डेवलपमेंट बेनिफिट्स एंड डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन मेकिंग में भी उसको साथ में रखना होगा एट ऑल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। यानी हर एक चीज में अगर हम वुमेन को इन्वॉल्व करते हैं तब जाकर के जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा समय हम लोगों के पास लगता है घट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड करो नेहा। जेंडर ब्लाइंड क्या होता है? देखो, जेंडर ब्लाइंडनेस इज द फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज दैट जेंडर इज एन एसेंशियल डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल आउटकम्स इम्पैक्टिंग ऑन प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी। अगर लोग जो है मानने को तैयार नहीं है कि जेंडर बायसनेस हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहलाएगा जेंडर ब्लाइंडनेस। यानी लोग को वहां पे अवेयरनेस ही नहीं है, वहां उसको पता ही नहीं है कि वो लोग एक फीमेल पार्टनर को जो है वो मेन स्ट्रीम में आने से रोक रहे हैं। जेंडर अवेयरनेस क्या है? जेंडर अवेयरनेस इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर सोशली determined difference between women and men based on learned behavior which affect their ability to access and control resources. अवेयरनेस मतलब कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ठीक है, मेल फीमेल का शारीरिक बनावट अलग होता है, उसके अनुसार उनको वर्क की एबिलिटी, जो खासकर लेबर की अगर हम बात करें, जैसे तो स्वाभाविक है ना कि फीमेल अगर कोई है तो ज्यादा बोझ उठाने वाला जो है वो काम जैसे नहीं कर सकती, हार्ड लेबर जो है नहीं हो सकता है, लेकिन वो दूसरे काम में एक्सेलेंस के द्वारा कर सकती है। अभी तो फीमेल जो है वो प्लेन उड़ा रही है, स्पेस में जा रही है, ठीक है। द अवेयरनेस नीड्स टू बी अप्लाइड थ्रू जेंडर एनालिसिस इनटू प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। जेंडर सेंसिटिविटी क्या है? जेंडर सेंसिटिविटी इनकम्पासेस द एबिलिटी टू एक्नॉलेज एंड हाईलाइट एग्जिस्टिंग जेंडर। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग जेंडर बायसनेस हो रहा है, अगर उसको हम लोग उसके प्रति कितने सेंसिटिव है, लोगों में कितनी ज्यादा जागरूकता है, कितना ज्यादा उनकी इच्छा है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, वो जेंडर सेंसिटिविटी कहलाएगा। ठीक है, लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं इक्वलिटी लाना, ठीक है, वो जेंडर सेंसिटिविटी कहलाता है। नेक्स्ट करो। टाइम कितना बचा हुआ अभी देखना पड़ेगा, 5 मिनट मुश्किल से बचा हुआ। चलो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना। डिस्क्रिमिनेशन मीन सिंपल सा बात है, भेदभाव, प्रीजुडिस ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द जेंडर स्टेरियोटाइप। प्रीजुडिस क्या होता है बताए थे ना, पहले से जजमेंट कर लेना। जैसे अगर हम लोग पहले से जजमेंट कर लेते हैं कि ये तो वोमेन है ना, ये जो है ट्रीटमेंट का काम नहीं कर पाएगी एनिमल का, या एनिमल को अगर वुंड है तो वुंड नहीं धो पाएगी क्योंकि ये तो वोमेन है, इसको मतलब हिम्मत नहीं करेगा करने का, या लार्ज एनिमल जो है ये हैंडल नहीं कर सकती, ये तो वुमेन है। तो ये पहले से अगर हम लोग जजमेंट कर ले दिमाग में कि नहीं ये ऐसा ही होगा, दिस इज कॉल्ड प्रीजुडिस। स्टेरियोटाइप किसको कहते हैं? फिक्स्ड इमेज को। एक फिक्स्ड इमेज बना हुआ है कि फीमेल जो है ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लोगों में बना हुआ है ना दिमाग में, गांव में खासकर ज्यादा है। ये सब जितने प्रॉब्लम तुम देख रहे हो ना जेंडर सेंसिटिविटी का,
जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक, ये मेनली रूरल एरिया के हैं। अर्बन एरिया में बहुत डेवलपमेंट आ गया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफी कम है। जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? अगर मेल और फीमेल को हम लोग इक्वल वैल्यू देते हैं तो वो जेंडर इक्वलिटी कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, absence of discrimination is gender equality। एक होता है जेंडर इक्विटी। तो जेंडर इक्विटी क्या है? It entails the provision of fairness and justice in the distribution of benefits and responsibilities between women and men। ठीक है, तो दोनों मिलता जुलता टर्म है, लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट स्लाइड करो, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, ये लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल से। जेंडर इशूज मतलब जेंडर से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं हमारे सोसाइटी में। जेंडर रिलेशंस वे इन विच ए कल्चर और सोसाइटी डिफाइन राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइडेंटिफाइज ऑफ मेन एंड वुमेन इन रिलेशन टू वन अनदर। है ना, मेल और फीमेल के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप बना हुआ है वो जेंडर रिलेशन कहलाता है। अगर अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो जेंडर बायसनेस जो है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम करने में ज्यादा सहूलियत होगी। जेंडर सेंसिटिवनेस, बीइंग अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन, ये तो हो गया, पहले डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड करो। नेक्स्ट। हाँ, तो ये हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और सबको समझ में आ गया है? जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हाँ, इसमें तो कोई, हम मेरे ख्याल से इसमें कुछ है भी नहीं, कुछ ज्यादा मतलब समझने वाली बात। सिर्फ एक ही है कि हाँ, हमारा जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा है ना। उन लोग का रोल जो है सोसाइटी में, मेल और फीमेल दोनों बराबर रोल प्ले कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो। लेकिन फीमेल को जो है, जैसे मान लो जो भी प्रॉफिट हो रहा है एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, प्रॉफिट में उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता है, ठीक है? पॉलिसी मेकिंग में उनसे सजेशन नहीं लिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। वी हैव टू स्टॉप दिस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? पहले इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि फीमेल को पढ़ने तक का हक नहीं था, है ना। दे वर नॉट हैविंग राइट ऑफ एजुकेशन। तो अभी जो राइट ऑफ एजुकेशन दिया गया, जिसके बदौलत अभी देखो तुम्हारे ही इस बैच में बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स भी है, ठीक है? और आज से अगर 25-30 साल पहले का अगर हम लोग वेटनरियन का लिस्ट देखते हैं तो रेयरली एक बैच में एक गर्ल्स स्टूडेंट्स होती थी पहले। हम लोग में भी बहुत कम रेशियो है सर, 5:1 का। नहीं नहीं, अब उतना कम नहीं कहलाएगा, अब है, अभी बहुत बढ़िया है। तो ये सारा जो है कैसे हुआ, धीरे धीरे, इसलिए इसको कहा गया दिस इज अ प्रोसेस, है ना। ये प्रोसेस होता है समथिंग विच हैपेंस इन ए साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर में होता है, धीरे धीरे सारा चीज दूर हो जाएगा। और हमारा रूरल सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। हमारा अर्बन सोसाइटी जो है चूंकि एजुकेटेड हो गया है, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन काफी कम है हमारा अर्बन सोसाइटी में। तो मेन डिफरेंस जो लाता है हमारा रूरल अर्बन का, वो हमारा एजुकेशन है, ठीक है? तो धीरे धीरे सारा डिस्क्रिमिनेशन दूर हो जाएगा समय जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है? नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम लोग वी शुड एंड दिस सेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर जो है इसका लास्ट बचा हुआ है वो डिस्कस करके खत्म करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू, ठीक। चलो।